Namah Shivaya. Welcome to our YouTube channel Study with Bhatt Sir. This is third lecture of Macroeconomics for the Manager BBA Semester 2 Gujarat University course. This is Unit 3 Macroeconomic Problems. In this chapter we are going to discuss about the macroeconomic problems. So a first point of this unit is બિઝનેસ સાયકલ. બિઝનેસ સાયકલ શું હોય? આપણે બિઝનેસ સાયકલ છે ને ભણી ગયા છીએ, બરાબર? તો બિઝનેસ સાયકલની ડેફિનેશન અહીંયા છે, હું રીડ આઉટ કરું છું. ધ બિઝનેસ સાયકલ રિફર્સ ટુ ધ ઇન્ક્રીઝ એન્ડ ડિક્રીઝ ઇન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કોઝડ બાય ફેક્ટર્સ લાઇક ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, ટ્રેડ, પ્રોડક્શન કોસ્ટ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. બરાબર? શું કહે છે કે ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝ થાય છે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીમાં અમુક ફેક્ટર્સના કારણે, જેમ કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ચેન્જ થાય, ટ્રેડ ચેન્જ થાય, લોકોનો ટેસ્ટ ચેન્જ થાય, પ્રોડક્શનની કોસ્ટ ચેન્જ થાય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચેન્જ થાય. તેનાથી પ્રોડક્ટ છે ને ઘણી વખત બહુ જ વેચાય, ઘણી વખત ના જ વેચાય, અને ઘણી વખત મંદી આવી જાય, ઘણી વખત તેજી આવી જાય. તો આવી પ્રોડક્ટની લાઈફ સાયકલને બિઝનેસ સાયકલ કહેવાય. ધ 4 ફંડામેન્ટલ સ્ટેજીસ ઓફ ધ બિઝનેસ સાયકલ ઇઝ એક્સપાન્શન, પીક, કોન્ટ્રાક્શન એન્ડ થ્રો. બરાબર? આ વસ્તુ 4 પોઈન્ટ છે ને દરેક પ્રોડક્ટને લાગુ પડે. તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું એક્ઝામ્પલ લો તો ચાલે. તમે કદાચ એવું વિચારો કે હું નવી પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં લઈને આવું છું, બરાબર? તો આ નવી પ્રોડક્ટ તમે માર્કેટમાં લઈને આવો ને, એને એક્સપાન્શન, પીક, કોન્ટ્રાક્શન અને થ્રુ, આ 4 સ્ટેજમાંથી એને નીકળવું જ પડે. બરાબર? તો સ્ટેજીસ ઓફ ધ બિઝનેસ સાયકલ, એમાં પહેલો સ્ટેજ આવે એક્સપાન્શન. પણ હું આ જેવું તમને એક્સપ્લેન કરું ને એના પહેલાં તમે એક કામ કરો. તમે છે ને, હું તમને એક ડાયાગ્રામ બતાવી, જોઈ લો. આમાં શું છે, કોઈ બી લેફ્ટ સાઈડથી ચાલુ થાય છે. તમે એવું વિચારો, હું તમને ઝૂમ કરીને બતાવું. આ બિઝનેસ સાયકલ છે. માની લો કે કોઈ એક પ્રોડક્ટ છે, બરાબર? સ્ટાર્ટિંગમાં એક્સપાન્શન સ્ટેજમાં, એક્સપાન્શન સ્ટેજ હોય ને એને આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન સ્ટેજ કહીએ. ઇન્ટ્રોડક્શન સ્ટેજમાં એવું બને કે તમારી પ્રોડક્ટમાં તમારું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, માર્કેટિંગ, એનો ખર્ચો વધારે હોય, બરાબર? તમે તમારી પ્રોડક્ટને માર્કેટમાં મૂકી રહ્યા હો ને ત્યારે તમારે મતલબ કે વાર લાગે, બરાબર? ખર્ચો વધારે હોય, ઇન્કમ કંઈ હોય નહીં, પણ તમારું એટલું બધું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થઈ જાય, તમારી પ્રોડક્ટ એ લેવલની આગળ વધી જાય ને, એ પીક લેવલ ઉપર પહોંચી જાય ને, ત્યારે એ વસ્તુ એ બની જાય કે એ પ્રોડક્ટ છે ને બ્રાન્ડ બની જાય. અને પીક લેવલ ઉપર પછી ધીમે ધીમે શું જાય, માર્કેટમાં એ વસ્તુ બધાને ખબર પડતી જાય, તો તમારે જેવી પ્રોડક્ટની કોપી કરવાની લોકો ચાલુ કરે. બરાબર? કે તમારા જેવી ઓપ્શનવાળી કોઈ ઓલ્ટરનેટિવ ઓપ્શન માર્કેટમાં કન્ઝ્યુમરને મળતા ચાલુ થઈ જાય. જ્યારે આ બધા સ્ટેજ આવે ને ત્યારે રિસેશન સ્ટેજ ઉપર આવી જાય. અને રિસેશન સ્ટેજ ઉપરથી આવ્યા પછી વળી પાછું એટલું બધું ડાઉન જતું રહે કે આપણે પ્રોડક્ટમાં પછી શું કરીશું કે હવે આપણી પ્રોડક્ટ વેચાતી નથી, તો આપણે વળી પાછું એમાં ચેન્જીસ કરીશું, નવી ટેકનોલોજી નાખીશું, કે એમાં વે ઓફ ધ પ્રોડક્શન ચેન્જ કરીશું, વળી પાછું ઇન્ટ્રોડક્શન કરીશું. મતલબ કે થ્રુપ સ્ટેજમાંથી, મતલબ ઇન્ફ્લેશન સ્ટેજમાંથી વળી પાછી એની રિકવરી કરીશું, વળી પાછું એક્સપાન્શન કરાવીશું, વળી પાછું એનું એ ચાલુ. તો એના અપડાઉન ચાલુ જ રહેતું હોય, હાર્ટબીટની જેમ. બરાબર? ઇસીજીમાં જેમ રિપોર્ટ આવે એ પ્રમાણે આને આપણે બિઝનેસ સાયકલ કહીએ છીએ. હવે બિઝનેસ સાયકલના અહીંયા મેં 6 સ્ટેજ આપ્યા છે. બરાબર? આટલી લાંબી બિઝનેસ સાયકલ આટલા ડિટેલમાં લગભગ મને નથી ખ્યાલ હું ક્યાંય મેં જોઈ હોય. બરાબર? તો હું તમને બતાવીશ એક્સપાન્શન સ્ટેજ, બરાબર, જે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે. પછી પીક સ્ટેજ, જે મેં કીધું માર્કેટમાં તમારી પ્રોડક્ટ બ્રાન્ડ બની જાય. બરાબર? પછી આવશે રિસેશન સ્ટેજ, જેમાં ધીમે ધીમે તમારી પ્રોડક્ટ છે ને ડાઉન થવા લાગે, લોકો એને એક્સેપ્ટ ના કરે અને બીજી પ્રોડક્ટ તરફ મૂવ થઈ ગયા હોય. અને પછી આ ડિપ્રેશન સ્ટેજ, જેમાં તમારું અનએમ્પ્લોયમેન્ટ થઈ ગયું હોય, બહુ જ તમારી પ્રોડક્ટની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ હોય. પછી આવે થ્રો સ્ટેજ. આ સ્ટેજમાં છે ને તમારી પ્રોડક્ટનો ગ્રોથ રેટ બહુ નેગેટિવ બની ગયો હોય, મતલબ કે તમારી હાલત બહુ જ ખરાબ થઈ ગઈ. તમે તમારી જે કેપિટલ હોય ને, જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જે મેન મૂડી હોય ને, એ બી તમે કવર ના કરી શકતા હો. અને પછી તમારું રિકવરી સ્ટેજ આવે, તમે વળી પાછું ચેન્જીસ કરશો ને એવું બધું કરશો, અને પ્રોડક્ટને માર્કેટમાં નવી ટેકનિક, નવી ટેકનોલોજી, નવા ટેસ્ટ કે નવી રીતથી માર્કેટમાં વળી પાછી લોન્ચ કરશો, એમાં વળી પાછી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એનો ખર્ચો કરશો, અને રિકવર સ્ટેજમાંથી એક્સપાન્શન સ્ટેજ બની જશે, એક્સપાન્શનમાંથી પીક સ્ટેજ ઉપર આવી જશે. આવું ચાલુ જ રહેતું હોય. બરાબર? આગળ વધીશું. ગુજરાતીમાં મજા આવી હશે. હવે થોડું હિન્દી. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ બિઝનેસ સાયકલ. તો અકર્સ પીરિયોડિકલી. આ છે ને, ધીસ કેન હેપન अगेन एंड अगेन. कोई प्रोडक्ट एवी ना हो, कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं होती है ना जो चलती रहती है. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पार्ले जी बिस्किट, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अमूल, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एनी कोल्ड ड्रिंक, एनी बेवरेजेस. बराबर? वो कभी रेगुलर नहीं चलती है. बराबर? उसकी एक सीज़न आती है तब चलना चालू होती है, उसका एडवर्टाइजमेंट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा.
फिर धीरे 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 उसकी राइवलरी होगी, मतलब कि कंपटीशन होगा, लोग और लोग भी होंगे जो वैसी प्रोडक्ट बनाएंगे या थोड़ी चेंज करके प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसके कस्टमर वो ले जाएंगे। फिर वापस से ये लोग समझ जाएंगे कि अपना भी सेल है ना वो डाउन हो रहा है। ये चालू का चालू ही रहता है, कभी बंद होता नहीं है। तो ये पीरियडिकली अकर होता ही है। सेकंड वाज दे आर सिंक्रोनाइजिंग। अब ये क्या है बराबर? तो कैसा होता है, कभी भी बिजनेस साइकिल आर नॉट लिमिटेड टू वन फर्म और वन इंडस्ट्री, दे ओरिजिनेटेड इन द फ्री इकोनॉमिक एंड आर pervasive in the nature. A distribution in one industry quickly spread to all over the industries and finally affect the economic as a whole. ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल सेक्टर्स आर अफेक्टेड, यहाँ से ना पूरे सेक्टर को अफेक्ट होगा। कोई एक ब्रांड, मान लो कि कोल्ड ड्रिंक की ब्रांड तुम्हारी नहीं चल रही है, तो इसका मतलब है और लोगों की ब्रांड में भी, और लोगों की जो बेवरेजेस है ना, कोल्ड ड्रिंक की कंपनियां है ना, उनको भी ये बात में दिक्कत आती होगी अगर आपको आ रही है तो। अगर नहीं आ रही है तो फिर छोटा सा कोई पॉइंट होगा, वो आपको सॉल्व आउट करना है बराबर। कॉम्प्लेक्स फिनोमियन होता है ये, हमेशा यही चीज़ होती है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसका यही चीज़ होता है, आप कोई बिजनेस साइकिल को देख लोगे तो यू कैन नॉट टेक एनी जजमेंट कि ये कंपनी की ये प्रोडक्ट में ये फॉल्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू कैन नॉट टेक एनी जजमेंट। ठीक है, आगे अफेक्टेड ऑल द डिपार्टमेंट, ये हर डिपार्टमेंट को अफेक्ट करेगा ये। हैंस इट इज़ गुड्स और इट इज़ द सर्विस, डजेंट मैटर। ये हर सेक्टर में, हर सर्विस में, हर डिपार्टमेंट में ये अफेक्ट करेगा ही। बिजनेस साइकिल ऐसे ही काम करती है। इंटरनेशनल इन द कैरेक्टर, अब बिजनेस साइकिल है ना वो इंटरनेशनली है ना अडॉप्ट हो चुकी है। यही वे से हर कोई है ना चेक करता है कि माई बिजनेस इज गोइंग ऑन परफेक्ट वे और नॉट, माई प्रोडक्ट इज रनिंग इन विच लेवल। परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट कैन मेजर बाय द बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। आगे है इन्फ्लेशन, ये नया पॉइंट है, IMP है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ओवर, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, प्राइस कम होती है ना कोई चीज़ की तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे अपने। इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में कोई चीज़ की प्राइस कम हो रही है ना, फॉल हो रही है ना, तो उसको इन्फ्लेशन बोल सकते हैं, गारंटी। इन्फ्लेशन इज टिपिकली अ ब्रॉड मेजर such as the overall increase in price or the increase in the cost of living in a country. अब टाइप्स ऑफ द इन्फ्लेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं हर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को है ना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर ऑल्सो। तो फर्स्ट वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकंड वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, थर्ड वन इज ओपन इन्फ्लेशन, फोर्थ वन इज रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, फाइव वन इज हाइपर इन्फ्लेशन, फिर क्रीपिंग एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन, फिर ट्रू इन्फ्लेशन एंड सेमी इन्फ्लेशन। इतने टाइप है इन्फ्लेशन के विच वी आर फेसिंग राइट नाउ, और इंडिया में ये सब हो चुका है। तो अच्छे से ये सब इंडिया फेस कर चुका है। तो ये 3 और 3 6 2 8 टाइप ऑफ द इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में शॉर्ट नोट भी लिख सकते हो, आपको अलग से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते जाना। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दिस इज व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी एक्सीड द एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ जाए तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही समझना है, ज़्यादा नहीं समझना है। कोस्ट पुल push inflation, supply can also cause inflationary pressure if the aggregate demand remains unchanged but the aggregate supply falls due to the exogenous causes, then the price level increase। अब सप्लाई फॉल हो जाता है, ठीक है, डिमांड में चेंज नहीं आती है, लेकिन सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड में चेंज नहीं आती है। उसका मतलब ऐसा है कि प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में वो ऑप्शन कम है। एक्टिवा में बीच में हुआ था, एक्टिवा मार्केट में सप्लाई करने के लिए कम थी, लेकिन उसकी डिमांड वैसी की वैसी ही थी, तो कंपनी ने एक्टिवा की प्राइस बढ़ा दी थी, बराबर। तो ये आपको नोटिस करना है, ये सब मार्केट में होता है। मैं जो बोला ना कि ये सब हो चुका है इंडिया में, तो होता ही है। अब है ओपन इन्फ्लेशन, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन वेयर द प्राइस लेवल राइजेस कंटिन्यूसली एंड इज विजिबल टू द पीपल। कोई प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती ही जाती है, जैसे कि एप्पल मोबाइल बढ़ती ही जाती है, कभी एप्पल मोबाइल की प्राइस कम नहीं होती। जब नया लॉन्च होता है उससे आगे नया वर्जन आएगा तो उससे ज़्यादा ही प्राइस का आएगा, तो ओपन इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। फिर है रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, लेट्स से दैट देयर इज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है ना, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है, दोनों एक सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर है हाइपर इन्फ्लेशन। अब इन हाइपर इन्फ्लेशन द प्राइस लेवल इंक्रीज एट रैपिड रेट।
रेट बढ़ता तो है कोई भी चीज़ का, कोई भी प्रोडक्ट का, लेकिन ये तो इतना फास्ट ग्रो करेगा ना कि यू कैन नॉट कंट्रोल योर, आई कैन से दैट यू कैन नॉट जज कि कल कितना रेट हो गया, परसों कितना रेट होगा, एक महीने में कितना बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। फिर रहता है क्रीपिंग एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन। क्रीपिंग मीन्स इन दिस केस द प्राइस लेवल इंक्रीज वेरी स्लोली। अब मॉडरेट में क्या होएगा कि नाइदर टू फास्ट नॉट टू स्लो, मतलब कि मीडियम लेवल पे, ठीक है। अब है ट्रू इन्फ्लेशन। दिस टेक प्लेस आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द factor inputs of an economy. When there is full employment, the national output becomes perfectly inelastic. Therefore, more money simply implies high prices and not more output. अब आगे लास्ट वन है सेमी इन्फ्लेशन। Even before full employment, an employee might face inflationary pressure due to the bottleneck from the certain sector of the इकोनॉमी। बराबर, ये थोड़ा था सेमी इन्फ्लेशन था, ऊपर था ट्रू इन्फ्लेशन। बराबर, मैंने हर चीज को आपको ने बोला ना कि इंडिया ये सब फेस कर चुका है, तभी ये टाइप अपने को कोर्स में दिए गए, बाकी ये नहीं देते। अब आगे है कोजेज ऑफ द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता क्यों है? तो पहले तो प्राइमरी कोजेज होते हैं जिससे इन्फ्लेशन होता है। इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग, इससे इन्फ्लेशन होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इससे इन्फ्लेशन होता है। इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलेशन, इससे इन्फ्लेशन होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ होने से, होर्डिंग होने से, जेन्युइन शॉर्टेज से, एक्सपोर्ट से, ट्रेड यूनियन से, टैक्स रिडक्शन से, द इम्पोजिशन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस से, प्राइस राइज इन द इंटरनेशनल मार्केट से। हैविंग अंडरस्टूड द inflation meaning, let's take a quick look at the factor that causes the inflation. इन्फ्लेशन तो समझ में आ गया कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन, बराबर। कोजेज ऑफ द इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ द इन्फ्लेशन भी समझ में आ गया। कोजेज ऑफ द इन्फ्लेशन में देखे जाए तो पहला है प्राइमरी, बराबर। तो प्राइमरी इन एन इकोनॉमी व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्सीड इट सप्लाई, देन द एक्सेस डिमांड पुशेस द प्राइस अप, जो आया उसको प्राइमरी कोजेज बोलते हैं, जिससे इन्फ्लेशन होता है। सेकंड वन इज इंक्रीज इन द पब्लिक स्पेंडिंग। गवर्नमेंट ज्यादा पब्लिक फैसिलिटीज पे स्पेंड करने लगेगा ना, तभी होता है। थर्ड वन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब गवर्नमेंट इतना ज्यादा स्पेंड कर देगी ना जो सही में नहीं करना था, मतलब डेफिसिट हो जाएगा, टैक्सेशन ज्यादा हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन रेट का बढ़ोतरी हो ही जाएगा। इंक्रीज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलेशन, जब मनी का फ्लो है ना वो एक हद से ज्यादा हो जाएगा ना, मीन्स रोटेशन ज्यादा हो जाएगा ना, तभी इन्फ्लेशन आएगा। जब मार्केट ज्यादा तेजी में चलता है ना, तब अपने को ये फेस करना पड़ता है। फिर है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई दोनों में मिसबैलेंस हो जाता है। होर्डिंग, अभी होर्डिंग नहीं समझ में आया होगा कि अपने को होर्डिंग का मतलब ऐसा है कि रोड पे लगी हुई एडवर्टाइजमेंट, नहीं, ऐसा नहीं है। होर्डर्स आर पीपल और द एंटिटीज हु स्टॉकपाइल द कमोडिटीज एंड डू नॉट रिलीज देम टू द मार्केट। मार्केट में स्टॉक करके रखते हैं साले, लेकिन फिर बेचते नहीं है। अभी हुआ था ना बीच में, वो पोटेटोज का हुआ था, टमाटर का हुआ था, ओनियन का हुआ था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसका तो एपिसोड भी बन गया, टमाटर का बन गया, फिर ओनियन का बन गया, तो वो भी इन्फ्लेशन ला देता है। जेन्युइन शॉर्टेज सही में मार्केट में है ना, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक चेंज, it can possible to give the genuine shortage, and then that genuine shortage gives you the inflation. Okay, एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया है, अपने पास मार्केट में माल ही नहीं रहा, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा क्योंकि उसका भाव बढ़ जाएगा। ट्रेड यूनियन काफी टाइम ऐसा करते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं और इन्फ्लेशन को बढ़ाते भी है, तो गेन सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट। टैक्स रिडक्शन भी, जब टैक्स ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा ना, तो लोग ज्यादा वो प्रोडक्ट के पीछे भागेंगे जिसमें टैक्स कम है, वो चीज लोग ज्यादा कलेक्ट करते हैं, तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ोतरी देता है, बराबर। फिर ज्यादा ये सब देखने का मतलब नहीं है, मैंने जो बोला वो उतना काफी है। अब है डिप्लेशन। डिप्लेशन इज अ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस। जनरल प्राइस का कोई गुड और सर्विस की डिक्रीज हो रही है ना, तो उसको डिप्लेशन बोलते हैं, बराबर। अब ये है ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप पे है ना अफेक्ट करता है। करेंसी चेंज, करेंसी का रेट चेंज कैन गिव्स यू द डिफ्लेशन, बराबर। अब डिफ्लेशन है ना दो तरीके से होता है, ये है ना कोजेज ऑफ द डिफ्लेशन। मेजर कोजेज है दो। फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, डिमांड कम हो गई, डिफ्लेशन हो जाएगा। सप्लाई ज्यादा हो गई, डिफ्लेशन हो जाएगी। दो चीज आपको पकड़ के चलना है, और इतना इसके बारे में जो मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा है ना, आपको ये लिखना है, ठीक है। कुछ इतना हार्ड नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, इतना एमपी पॉइंट भी नहीं है,
आप ये भी देख सकते हो कि फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, तो डिमांड कैसे कम होगी, फॉल इन मनी सप्लाई, जब मनी कम हो जाएगी लोगों के पास तो। और दूसरा पॉइंट है डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस वो प्रोडक्ट के लिए कम हो जाएगा, तो या फिर कंपनी का कॉन्फिडेंस वो प्रोडक्ट के लिए कम हो जाएगा, तो धीरे से सीधी सी बात है डिमांड फॉल हो जाएगी। सप्लाई कब बढ़ेगी, जब लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, तो लोग ज्यादा माल बनाएंगे, सस्ता माल बनाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, ज्यादा सेल करने के लिए, एक चीज ये है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ज्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी मिल गई मेरे को, अच्छी मशीनरी मिल गई, अच्छे स्किल वर्कर मिल गए, तो मैं ज्यादा प्रोडक्ट बनाऊंगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनाऊंगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, ये लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ऊपर के पैराग्राफ से। ये दो मेजर पॉइंट के अंदर भी आपको दो दो पॉइंट मिल रहे हैं लिखने के लिए। मैंने जो ऊपर था वही है, देखो वही है, इतना कुछ वो चेंज नहीं है, बट मैंने आसानी से आपको समझा दिया। आगे, अब स्टेजफ्लेशन क्या है? स्टेजफ्लेशन is the stimulation appearance in an economy of a slow growth, high unemployment। सॉरी मेरी जीभ चिपक रही है, तो सुबह से लेक्चर ले रहा हूँ इसलिए। एक तो स्लो ग्रोथ होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ज्यादा ही हो जाती है, और प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, ऐसी बेकार चीजें होती है जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, बराबर, तो उसको है ना स्टेजफ्लेशन बोलते हैं। ऐसा स्टेज जहाँ पे तुम्हारी कंट्री की तकलीफें बढ़ रही है। Once thought by the economics to be impossible, stagflation has occurred repeatedly in the developed world since 1970। 1970 से 1970 થી આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ફેસ કરતા આવ્યા છીએ, એક વખત તો સ્ટેજફ્લેશન અમુક પીરિયડ પછી આવે જ। Policy solution for the slow growth tend to the worsen inflation or the vice versa। પહેલે સ્લો ગ્રોથ થાય ને પછી એમાંથી ઇન્ફ્લેશન આવી જાય ને, એ બી બહુ ખરાબ ઇન્ફ્લેશન આવી જાય ને, આ છે ને વાઇસા વર્સા ચાલુ ને ચાલુ જ રહે, બરાબર। अब देखो, what is stage inflation? The stage inflation is a situation when inflation is high but economic growth is slow। ઇન્ફ્લેશન બહુ જ હોય પણ ગ્રોથ મળતો ના હોય। અહીંયા અનએમ્પ્લોયમેન્ટ પણ બહુ જ લાંબા સમય સુધી રહેતું હોય ને, તો આપણે એને સ્ટેજફ્લેશન કહીશું જ, બરાબર। આટલું મસ્ત સમજવા જેવું હતું જે આપણે સમજી લીધું, આ ગ્રાફ થી જોઈશું। અનએમ્પ્લોયમેન્ટ છે, ઇન્ફ્લેશન છે, ઇકોનોમિક ગ્રોથ જોઈએ એવું નથી, ઉપરથી ડાઉનવર્ડ થાય છે, બ્લેક લાઈન તમે જુઓ, બરાબર। તો આવી સિચ્યુએશન, આ ત્રણ સિચ્યુએશન મિક્સ થાય ને, તો આપણે એને કહીશું કે આ સ્ટેજફ્લેશન થઈ ગયું છે, બરાબર। આ સ્ટેજફ્લેશન થાય શું કામ? તો સપ્લાય શોક થાય ત્યારે, બરાબર। પછી હું તમને સમજાવું એ પ્રમાણે હું વાંચું, તમને મજા આવશે। Supply shock often come into form of the rising oil, food or similar essential commodity prices which affect most business। This can make producing these commodities much more expensive। આવું બધું થાય એટલે કોઈ પ્રોડક્ટ જે ભાવે બનતી હોય ને એના કરતા મોંઘા ભાવે બનાવવી પડે। As a result, producer pass on the cost to the wholesaler, retailers, distributor and eventually final consumer that consuming the inflation। અને આવી રીતના ભાવ વધતો વધતો wholesaler થી retailer જોડે જાય, retailer થી પછી આપણી જોડે આવે તો ભાવ વધતો જ જાય। The 1917 oil crisis saw the happen and 1970 માં છે ને ઓઇલ નો ક્રાઇસિસ આવો બની ગયો હતો, બરાબર। અને રશિયા યુક્રેન વોર માં હમણાં જ તમને આ વસ્તુ જોવા મળી, તો મેં લેટેસ્ટ એક્ઝામ્પલ લખેલું છે। In some cases like the war, pandemics or other conflicts, transport and the supply chain cost can also increase dramatically। બધા છે આવું કઈ થાય ને, વોર થાય કે નેશનલ કઈ પ્રોબ્લેમ થાય કે પેન્ડેમિક આવે ત્યારે આ વસ્તુ આપણને જોવા મળે કે સપ્લાય ચેઇન ની જે કોસ્ટ હોય ને, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ની કે પાર્સલ ની કે ની, તો એ કોસ્ટ ઓટોમેટિકલી વધી જાય અને બહુ વધારે પડતી વધી જાય, બરાબર। This can be because a country faces a number of embargoes and other sanctions, or the parts of the supply chain are crippled by the conflict। This is then leads to the manufacturer having to come up with more roundabout transport routes, thus causing this price increase। As the manufacturing process becomes more expensive, this also causes layoff and decrease in the output। Output ઓછો થઈ જાય, વચ્ચે કામ રૂકી જાય અને પ્રોડક્શન કોસ્ટ વધી જાય, બરાબર। This leads to slow economic growth। આના કારણે ઇકોનોમિક ગ્રોથ ઓછો થઈ જાય, હાઈ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ થઈ જાય અને આના કારણે ઇન્ફ્લેશન થાય। આપણે એને સ્ટેજફ્લેશન કહીએ છીએ। આવું મારે સમજાવવાનું હતું, જે મેં સમજાવી દીધું, અને એને એક્સ્ટ્રા હજુ પણ તમે લખી શકો છો, બરાબર। જો તમને મારો વિડીયો ગમતો હોય, જો તમને મારા વિડીયોમાંથી કંઈક નોલેજ મળતું હોય, તમને તમારું બીબીએ સારી રીતે સમજાતું હોય, બરાબર, તો પ્લીઝ લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બરાબર। અને પ્લીઝ લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરશો ત્યારે તમને એક બીજો ફાયદો પડશે, જ્યારે તમારી એક્ઝામ આવશે ને
ત્યારે હું IMP લેક્ચર્સ લઈશ, પેપરના સોલ્યુશન આપીશ, અને જે આપીશ એ તમારું પૂછાશે જ એવી રીતનાનું IMP આપીશ. તમારો ટાઈમ નહીં બગાડું, બરાબર? તો ગ્રુપમાં શેર કરો. મારી ઈચ્છા છે કે આ વિડીયો જોયા પછી તમે કમસે કમ 50-60 સબસ્ક્રાઈબર બીજા લાવશો. 444 સબસ્ક્રાઈબર છે, મારે 500 પહોંચાડવા છે, બરાબર? પ્લીઝ આટલું કરી આપો. થેન્ક યુ. હર હર બોલે. આભાર.